ہلو ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام الہدا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قبر کے اندر چلے گئے وہ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے۔ ان کا دعویٰ ہے۔ جی 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 ہاں ان کو بولنے دیجئے، خود سے کہے کہ آپ کیا کہتے ہیں، قبر میں جو چلے گئے وہ سن بھی نہیں سکتے اور دیکھ بھی نہیں سکتے۔ سنو سنو سنو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ بے شک ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو قبر میں ہے اس کو تم سنا نہیں سکتے۔ ارے مطلب تو وہی ہوا۔ ارے میں اس کو کیسے سنائیں گے بھائی؟ اچھا، اور بولے تو آپ اللہ سنائے گا تو سن سکتا ہے، اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے، لیکن میں نہیں سنا سکتا۔ نہیں، آپ خود سے دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ آپ میں تو دیکھ سکتا ہوں، اللہ رب العالمین میرے کو زندہ رکھا ہے نا دنیا میں۔ کون دکھاتا ہے اور کون سناتا ہے آپ کو؟ ارے بھائی، اللہ رب العالمین سب کچھ میرے کو دے دیا نا۔ ہاں، آپ کو دے دیا، یعنی آپ کو سناتا کون ہے اور دکھاتا کون ہے آپ کے لیے؟ سنو، اللہ رب العالمین انسان کو پورا پرفیکٹ بنا کے دنیا میں چھوڑا ہے کہ نہیں؟ ابھی تم اچھا برا سب کچھ تم اپنا مرضی سے کرو۔ سنو، ابھی اب تم سنو بھائی، سنو میری بات سنو، ایک منٹ میری بات سنو۔ ابھی اگر میں کچھ غلط چیز دیکھوں تو تمہارے حساب سے یہ اللہ دکھا رہا ہے؟ استغفر اللہ، یہ اللہ دکھا رہا ہے؟ آپ ادھر رکھتے ہو بھائی؟ نہیں، آپ پورے بول لیں، اس کے بعد خاموش ہوں گے، اس کے بعد میں جواب دوں گا انشاءاللہ، ہے نا؟ بھائی ہمارے دیکھو، ہم لوگوں کو جو دنیا میں ہم لوگ دنیا میں آیا نا، یہ انسان کے اونلی جین اور انسان کے لیے، مطلب وہ اپنا پاور دیا کہ تم کچھ بھی کرو، صحیح ہے غلط ہے، تم دیکھ کے جو صحیح ہے صحیح کرو، غلط ہے تمہارا، مطلب تم کچھ بھی کرو لیکن حساب دینا ہے میرے کو، ہے کہ نہیں؟ ابھی اگر میں کچھ غلط کام کیا، مطلب یہ نہیں میں اللہ نے کروایا، ایسا نہیں، یہ غلط عقیدہ ہے۔ میں کر رہا ہوں کیونکہ میرے کو سب کچھ دیا، ہاتھ دیا، ابھی میں کہوں تو زہر پی لو، لیکن یہ اللہ نے پلایا کیا؟ نہیں، ایسا نہیں، میں پی رہا ہوں۔ بول لیے اب تم بتا، ہاں بولو، آپ تم کو کیا بولنا ہے بولو۔ بہرحال آپ کو میں پوچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اختیار بندوں کو دیا ہے جسے وہ اختیاری طور پر اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، آپ کا عقیدہ ہے۔ لیکن قبر والے کو یہ اچھی بات ہے کہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، لیکن قبر والے کو آپ نہیں سنا سکتے اور سن بھی نہیں سکتے، جس سے استدلال آپ نے کیا کہ قبر والے نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، نا؟ یہی نہ کہا؟ بولتے رہو بھائی۔ آپ نے یہی کہا، اور میں آپ نے کہا اللہ رب العالمین کا فرمان ہے جو قبر میں ہے اس کو تم سنا نہیں سکتے۔ کون سی آیت ہے؟ میں اس کو سنا نہیں پاؤں گا، میں اس کو سنا نہیں پاؤں گا۔ یعنی رسول جو پاک ہم لوگ درود پڑھ رہا ہوں نا، سنو، یہ جو ہم لوگ درود پڑھ رہا ہوں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، مطلب یہ جو درود پڑھ رہا ہوں، ہزاروں لوگ، کروڑوں لوگ پڑھ رہا ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ نہیں سن رہا ہے، یہ فرشتوں کے ذریعے سے اس کو سنا دیا رہا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے اس کو سنایا جا رہا ہے، تو سن رہے ہیں نا قبر میں؟ آپ کے تو یہ جو بیان کر رہے ہو خود کے عقیدے کی دھجیاں اڑا رہے ہو نا آپ۔ عجیب بات کر رہے ہو بھائی، میں اس کو کیسے ابھی میں کچھ بول رہا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کو مطلب سپنے میں دکھا دو، تو سنے گا کیا؟ جی مطلب
जैसे कि मैं आज रात में ये सोच रहा हूँ और ये बोल रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे को सपने में दिखा दो, सपने में आ जाओ, आपसे मुलाकात करना है, तो ये सुन लेगा क्या? बिल्कुल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने कुव्वत समाअत इतनी दी है, दुनिया की तो हैसियत ही अलग। बल्कि हदीस पाक में, बुखारी में हदीस मौजूद है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान के ऊपर जो अर्श है उसकी चरचराहट को भी सुनते हैं, और 7वें जमीन के नीचे जो दोजख है उसमें पत्थर फेंका था किसी फरिश्ते ने, तो 1000 साल के बाद, कई हजार साल के बाद गिरा, उसको भी सुनते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिस आयत से आपने इस्तेदलालन आपने दावा किया है वो आयत भी आप नहीं पढ़े, मैं खुद पढ़ देता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मा दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन है। इसमें आयत नंबर यही तो पढ़ रहे थे आप, इसी का तर्जमा कुछ सुनाए आधी, और आधी आयत को आपने अपने हजम कर लिया, सुनाया भी नहीं। और आप अकीदा अफतुमिनून बिबादिल किताब तकफुरून बिबाद के मिज़दाक यानी यहूद व नसारा की तरह अकीदा बना लिए हैं। बहरहाल यह आयत 80 है, पारा नंबर 20 है, सूरतुन नमल सूरा नंबर 27 है, जिसे आपने आधी तौर पर ईमान रखा। यानी ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दों को नहीं सुना सकते और ना बहरों को अपनी आवाज सुना सकते हैं जबकि वो पीठ फेर कर चल दें। पहली बात तो यहाँ पर पीठ फेर कर चल दें तो वो कुफार मुशरिकीन के लिए था, जिसमें आपने कब्र पर फिट किया। और एक आयत है जिसमें इन्नल्लाह युस्मिउ मन तशाउ व मा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर व इन अंता इल्ला नज़ीर। आयत नंबर 22 है, पारा नंबर 22, सूरतुल फातिर सूरा नंबर 35। इसका तर्जमा होता है यानी अल्लाह ताला जिसको चाहता है सुनवा देता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नहीं सुना सकते जो कब्रों में हैं। लेकिन आपने आधी आयत का तर्जमा पढ़ा और लोगों को धोखा देने की कोशिश की है। और आगे तर्जमा होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ डराने वाले हैं। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है, सब कुछ हमारा अकीदा है मुसलमानों का, पूरी दुनिया के निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ही चलाता है। अल्लाह ताला जिस तरह बंदे को सुनने की समाअत व बसारत यानी देखने की ताकत वही दिया है, उसके दिए बगैर कोई भी रत्ती बराबर अगर अकीदा रखे कि अल्लाह के दिए बगैर ये देख सकता है, सुन सकता है, तो वो दायरे इस्लाम से खारिज है। हम लोगों का, मुसलमानों का अकीदा है। बहरहाल अगर इसके तफसीर आप पढ़े रहते तो इस तरह से गुमराह और रास्ते से आप नहीं भटकते। तफसीर तमाम मुफस्सिरीन किराम ने बयान किया है, आयत मज़कूरा में मौता से मुराद जिंदा काफिर मुराद हैं, जिनके कुलूब कुफ्र आजाब यानी कुफ्र इनाद की वजह से मुर्दा हो चुके हैं और वो ला तुस्मिऊन नहीं सुना सकते। का मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको नहीं मनवा सकते। यानी अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ महबूब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुर्दा दिल जिंदों काफिरों को अपनी बात नहीं मनवा सकते। इन आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुर्दा दिल जिंदा काफिरों को कब्र वाले मुर्दों से तस्वीर दी है। तमाम तफसीर में यही लिखी हुई है, लेकिन आप तफासिर को अपने पश्ते पुश्त डाल करके अपना अकीदा, नजदियों का अकीदा जो चंद छटाक में बिके हुए हैं उनके अकीदे पे चलते हैं, ना कि मुफस्सिरीन से। कुरान समझना है तो मुफस्सिरीन से समझिए, हदीस समझना है तो मुहद्दिसीन से समझिए, समझे भाई? अभी स्टॉप करो ना, अभी बंद करो। तुम्हारा अकीदा ये है कि दुनिया में मतलब वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहा है, सुनता है। तुम्हारा यही अकीदा है ना? जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सुनते हैं। ये अकीदा कहाँ से लिया भाई? ये हदीस और कुरान से। मैं दलील दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है वो। हदीस और कुरान से जरा बता दीजिए। जी जी, तो आयत में एक मिनट में लिख रहा हूँ, एक मिनट
एक मिनट में लिख रहा हूँ, एक मिनट। लिख रहे हैं, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। हदीस नंबर और आयत नंबर पूरे बताते जाऊंगा आपको, ताकि आप समझ के जाइएगा, है ना, फोन काटिएगा नहीं। हाँ भाई, रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह अज़ीज, और हवाला आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए। और इस नाचीज को दीन इस्लाम की खिदमत करने का जो मौका जुल्फ़िकार भाई ने दिया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप जी बोल भाई, सुनो, बोलो। ये आयत नंबर कुरान मजीद का आयत, जो कुरान मजीद आयत नंबर बता दो और सूरह नंबर जिससे आप इस्तेदलाल किए। आयत नंबर 22 सूरतुल फातिर, सूरा नंबर 35 मैंने पेश किया, उसका तर्जमा भी बताया। दूसरी आयत में पढ़ा था आयत नंबर 80 पारा नंबर 20 सूरतुल नमल सूरा नंबर 27, जिसका तर्जमा बताया और तफसीर भी बताया। एक मिनट भाई यार, एक एक करके बताओ ना। ये जो सूरह फातिर आयत नंबर 35, इसमें क्या लिखा है? इसमें तर्जमा होता है, सुन लीजिए, यानी अल्लाह ताला जिसको चाहता है सुनवा देता है। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशाउ। ये किसने सुनाएगा? यानी अल्लाह तबारक व ताला जिसको चाहे सुना देता है, जिसको चाहे सुना देता है जी, है ना। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का, ये सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन सुना देता है। जी जी, तुम सुना पाओगे क्या? जिस तरह से मैं सुन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ही सुनवाता है क्या? मैं इस आयत को सुनो, आप समझने के लिए आए हो ना। इस आयत में जो आप सुन लें, जो आप इस आयत से इस्तेदलाल किए कब्र वालों की, यानी अंबिया औलिया को मुराद लिए हैं आप, लेकिन इससे कब्र वाले मुराद लेना गलत है। इसलिए कि बिमुस्मिन मन फिल कुबूर। जी एक मिनट मेरी बात सुनो। अच्छा सुनाइए, आराम से सुनो। ये जो आपने आयत पढ़ी है, जो सूरह फातिर आयत नंबर 35, इसमें आपने कहा है कि इसका मतलब है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्ल्ड की बात सुन लेता है, और ये जो हम लोग बात कर रहा हूँ ये भी सुन रहा है। तुम्हारा यही अकीदा है? जी बिल्कुल अकीदा है। दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। ये बरेलवी कौम का अकीदा है। पहले नंबर तो बरेलवी कहिए, मैं दलील दे रहा हूँ ना, मेरी जिम्मेदारी है दलील देनी। हम अहले सुन्नत मसलक के हक, उलमाए हक, बरेलवी मसलक के आला हजरत वाले कुरान और हदीस, जी, अगर कुरान और हदीस में ऐसा लिखा हुआ है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पे, ये जो दुनिया में वर्ल्ड में आसमान जमीन चांद, मतलब कहीं भी जो कुछ भी हो रहा है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनता है। तो मैं तुमको, अगर ऐसी बात तुम दिखा पाया ना, मैं तुमको 1 लाख रुपए इनाम, साथ में तुम्हारा धर्म में कबूल करने के लिए तैयार हूँ। देखिए आपके इनामात जो रखे हैं, मेरे तरफ से मुतालबा आपको यही है कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बरकत खूब दिया है, और मैं आप लोगों के नाजायज और हराम पैसे का मैं तालिब नहीं हूँ और ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, बल्कि मुझको इनाम देना चाहते हैं तो आप गलत अकायद से तौबा करके मुसलमान में दाखिल हो जाएं। इससे बड़ी चीज मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा जो बरेली धर्म है ना, वो मैं कबूल करने के लिए मैं तैयार हूँ, बता दिया ना। अब गौर से सुनिए, आपका जो एतराज था मैं समझ गया, तो इस आयत की तफसीर मैं बता दे रहा हूँ। ये कुरान मजीद का जो आयत तुम बता रहे हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाया, वमा यस्तविल अहयाउ वल अमवात, जो जिंदा है और जो इंतकाल हुआ दोनों बराबर नहीं है। मैं बराबरी और समता की बात नहीं कर रहा हूँ, वो उसके ऊपर अमल जो है मुनक़ते कर दिया जाता है और जिंदा अमल उसका सिलसिला जारी रहता है, इसलिए बराबर नहीं है। अभी आप मौजू से ना हटें, कब्र वाले, आप खामोश हो जाएं बोल करके।
आप जरा चुप बैठिए, मेरे को बोलने दो। हाँ बोल लीजिए। वमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात, जो जिंदा है और जो इंतकाल हुआ दोनों बराबर नहीं है। जी बिल्कुल बरहक है। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, अल्लाह चाहे तो सुना सकता है। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, जो कब्र में है उसको तुम सुना नहीं सकते, जो कब्र में है उसको तुम सुना नहीं सकते। जो भी हो, हमारे में आप आयत नंबर बताएं। वही सूरह फातिर आयत नंबर शायद 20, एक मिनट मेरे को, मैं आपको 22 है, आयत नंबर 22 में बता दे रहा हूँ आपको। जो आयत पढ़े हैं ना, हम लोग अहले सुन्नत व जमात हैं, डंके की चोट पे हक भी इजहार करते हैं। सूरतुल फातिर में आयत नंबर 22 है, वमा यस्तवी इल्ला अहयाउ वला अमवात, ये पढ़े इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशाउ वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर है। सूरतुल फातिर सूरा नंबर 35 और आयत नंबर 22 है, ये पारा नंबर 22, समझे? तो इसको आप समझे नहीं मेरे भाई, गौर से सुनिएगा ताकि आप राह गुमराहियत से आप हक को पहचानने की कोशिश कीजिएगा, ना कि बुग़्ज़ व इनाद से। इल्मी बात सुन लीजिए। बात अच्छी बात है कि एक आलिम दीन को याद किए हैं तो कुछ इल्मी बात सुने। इसका तर्जमा होता है, इस आयत पर आपने अदम इस्तिमाई अरवाह पर इस्तेदलाल किया है, उनकी रूह भी नहीं सुन सकती। अगर बनज़रे गायर मुताला कीजिए तो मामला इसका बिल्कुल बरअक्स है। यानी इल्मी बात कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रही है, आप पढ़े लिखे होंगे इसलिए। यानी ये आयत करीमा सेमाई अरवाह पर दलील है। जिस मुद्दा पर ये आयत करीमा जिसको आपने पेश किया है बकमाले वजूह दाल है, वो किसी हक पोश की नाहक पोशी से मख्फी रह सके, ये महज हिमाकत और सिरे से खाम ख्याली है। आयत मुक़द्दसा की तफसीर में मुहक्किकीन की तसरीहात व तौज़ीहात शाहिद हैं कि यह आयत आपके खाम ख्यालात बातिला से कुछ भी ताल्लुक नहीं रखता। आयत करीमा जो अम्र अजली और मफहूम अजहर मिन शम्स है साबित होता है, वो वही है अहले सुन्नत का साफ और सच्चा अकीदा है। अगर आयत करीमा से समाई अरवाह मन फिल कुबूर की नफी पाई जाती तो आपको जरूर लबकुशाई का मौका हासिल था। हालांकि आयत करीमा में इस्मा की नफी है, यानी तुम अपना काम करो, तबलीग किए जाओ, कुलूब हमारे अख्तियार में ही हैं। यानी मन फिल कुबूर को तुमने नहीं से इनकार सुनना हमारा काम है, हमारा काम सुनाना है। कि इस तर्ज पर दिगर मकामात पर भी खिताब व कलाम फरमाया गया है। सुनिए, इरशाद रब्बानी है, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। आयत नंबर 56 है, सूरतुल कसस में भी देखिएगा, पारा नंबर 20 आयत नंबर 28। तर्जमा होता है, जिसको आप पसंद करते हैं उसे हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है सीधे रास्ते की जानिब हिदायत देता है। तफसीर सुने, हजरत अल्लामा अब्दुल्ला बिन अहमद बिन महमूद नसफी इस आयत की तफसीर शान नुज़ूल फरमाते हैं, मुफस्सिरीन किराम का इस पर इत्तफाक है, ये आयत अबू तालिब के मुतालिक नाजिल हुई, और वो इसलिए कि अबू तालिब ने अपनी मौत के वक्त कहा, ए बनी हाशिम के गिरोह, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करो, कामयाब हो जाओगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे चचा, तुम इन लोगों को खैर की हुक्म देते हो और अपने नफ्स को छोड़ देते हो। तो अबू तालिब ने कहा, ए भतीजे, क्या चाहते हो? हुजूर ने इरशाद फरमाया, मैं चाहता हूँ कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, मैं अल्लाह के पास आपके वास्ते इस कलमा की शहादत दूंगा। अबू तालिब ने कहा, है भतीजे, मैं जानता हूँ तुम सच्चे हो, लेकिन मैं इसको नापसंद करता हूँ कि मेरे मुतालिक कहा जाए कि वो मौत के वक्त घबरा गया है। इस आयत की शान नुज़ूल से मालूम होता है कि हुजूर अपने चचा अबू तालिब ईमान को चाहते थे, मगर वो ईमान ना लाए, क्योंकि अल्लाह की मशीयत नहीं थी कि वो ईमान लाएं।
इससे ये बात जाहिर है कि हिदायत हकीकी देना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम नहीं, वो परवरदिगार आलम की शान है, जिसको चाहे हिदायत दे। बिलाशुबा अल्लाह ने रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हादी बनाकर भेजा है, लेकिन आपकी हिदायत वही शख्स कबूल करेगा जिसको मशीयत परवरदिगार चाहे। यही मतलब कुरान की इस आयत मुकद्दसा इन्नल्लाह यस्मउ मन यशाउ वमा अंता बिमुस्मिन मन फिल कुबूर का है। यकीनन अल्लाह जिसको चाहता है सुनाता है, तुम अहले कुबूर को नहीं सुना सकते। यानी ऐ लोगो, तुम में ये ताकत व कुव्वत नहीं कि तुम अपना सलाम व कलाम अहले कुबूर को सुना सको। ये कुदरत हमारे अंदर है कि हम जिसको चाहते हैं सुनाते हैं। लिहाजा आयत में सुनाने की नफी है, सुनने की नफी नहीं है। अगर मुर्दों को सुनने की नफी आयत मुकद्दसा में रहती हो ही रहती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई सुनो, अरे यार तुम 10 मिनट 15 मिनट टाइम ले रहे हो, मुझे 1 मिनट भी बोल। एक मिनट सुन लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर से क्यों इरशाद फरमाते, अरे उमर ये मुर्दे तुमसे ज्यादा सुनने वाले हैं। अभी सुनो, अभी आया ठीक जगह पर। तुम भी कह रहे हो कि अल्लाह की सिवा कोई नहीं सुना सकता, हम लोग सुना नहीं पाएंगे। ये जो हम लोग दरूद पढ़ रहा हूँ, तुमको मालूम है क्या कि ये दरूद जो हम लोग पढ़ रहा हूँ ये फरिश्तों की वजह से इसको पहुंचाया दिया जाता है कि नहीं? न डायरेक्ट हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लेता है? नहीं। ये जो हम लोग दरूद पढ़ रहा हूँ जगह जगह, मतलब करोड़ों आदमी हम लोग दरूद पढ़ रहा हूँ, ये दरूद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाके सुना देता है ना? तो हम लोग नहीं सुना सकते। और फरिश्तों की बात अलग है, हम लोग इंसान है। दुनिया से जो अलविदा हो गया, जो दुनिया से इंतकाल फरमाया, उससे और दुनिया से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। अगर तुम कोई भी हदीस पढ़ो, कोई भी किताब पढ़ो, तुम अगर ऐसा दिखा पाया कि जो दुनिया से विदाई हो गया, मतलब इंतकाल फरमाया, तो दुनिया वालों को जर्रा सा भी मदद कर पाएगा। अगर ऐसा तुम एक भी हदीस, एक भी कुरान मजीद का आयत तुम दिखा पाया ना, तो मैं उसी वक्त उसी दिन तुम जो बोलोगे वही करने के लिए मैं तैयार हूँ। दिखा नहीं पाओगे। देखिए जनाब, आप मौजू से इधर उधर ना भटके। मदद पर आएंगे तो मदद बिल्कुल जायज है, हम रवा मानते हैं, मदद कर सकते हैं, वो अलग मौजू है, वो अलग टॉपिक है। सिर्फ आप सुना नहीं सकते या सुन नहीं सकते, इस पर आप दलील पेश करें। तुम कम से कम 5 जिस आयत आपने पेश की उसका तो धजिया में बिखेर दिया तफसीर से। तुमको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है इंशाल्लाह। इतनी बड़ी हाके नहीं, मैं इंशाल्लाह मेन पॉइंट में मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, बड़ी खुशी है, हक की आवाज चारों तरफ गूंजे। सुनो, तुमको मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, अगर तुम ऐसा एक हदीस, ऐसा कुरान मजीद का आयत तुम दिखा पाया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान जमीन, मतलब वर्ल्ड में जो कुछ भी होता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनता है। जनाब तुम अगर ऐसा खामोश है पाया तो मैं उसी वक्त मैं तुम्हारा धर्म, अच्छा, बरेली धर्म है ना, वो कबूल करने के लिए मैं तैयार हूँ। वो इस्लाम है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के हम लोग धर्म में यानी इस्लाम में कायम है, बरहक है। मैं जनाब से आपका नाम भी मुतालबा करना, मैं आपका नाम मैं जान सकता हूँ? नहीं जनाब, आपका नाम मैं जान सकता हूँ? मेरा नाम है हाशिम अली, मैं आसाम हाशिम अली रहने वाला हूँ। हाशिम अली साहब, आप शायद अगर अहादीस का मुताला किए होते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर से इरशाद फरमाते हैं, ए उमर ये मुर्दे तुमसे ज्यादा सुनते हैं। आप हदीस भी बुखारी शरीफ के पढ़े रहते तो समाते मौता से आप इनकार नहीं करते। बहरहाल आपकी ये अफसोस है आप पर कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया, हुक्म दिया कि अहले कुबूर को सलाम करने वालों को जानते हैं और उनका सलाम का जवाब देते हैं, जबकि हुजूर का हर कौल फेल अमल कुरान की तफसीर हुआ करता है। इससे मालूम हुआ कुरान में जो नफी वारिद हुई है उसका मतलब वही है जो हमने आपसे पहले कुछ कब्र बयान किया, लेकिन आप
समझने से कासिर हो, खासिर हो। बहरहाल मैं हदीस की तरफ आऊं या कुरान की मजीद तफसीर सुनाऊंगा। अभी मैं भी बोलना चालू कर दिया तो कौन सुनेगा फिर? जी सुनेगा? तुम बोल रहे हो, मैं भी बोलना चालू किया तो कौन सुनेगा फिर? अच्छा, बहरहाल मैं आपको जो आपने जिस आयत से दलील पकड़ी है, यानी सुनने की नफी कर रहे थे आप, लेकिन मैंने तफसीर बताया। एक तफसीर अभी इब्ने कसीर मेरे हाथ में है, अगर सुनेंगे तो आपको सुनाऊंगा। जिल्द नंबर इसका 3 है, सफा नंबर 514 आप खोल लें। यही आयत सूरतुल फातिर आयत नंबर 22 की तफसीर में हजरत अल्लामा इब्ने कसीर अपनी मशहूर आफाक तस्नीफ इब्ने कसीर में तहरीर फरमाते हैं। नहीं सुनेंगे? दलील तो सुन लीजिए। मैं आपको दलील नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आप तो राह रास्त में नहीं आओगे, लेकिन मुसलमान लोग सुनेंगे तो अपने अकीदे ईमान पर फख्र करेंगे। दीन इस्लाम को जब कर रहे हो, सुनिए आप, दलील नहीं कर रहे हो। मैं दलील कुरान और हदीस और तफसीर से मैं दलील दूं, और मैं ही खराब कर रहा हूँ इस्लाम को, आप संवार रहे हो। अपनी अकल से अकल के घोड़े मत दौड़ाएं कुरान में। हाशिम अली साहब, बराए मेहरबानी कुरान पे अपने राय चलाने वाले की ठिकाना जहन्नम है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उल्टी सीधे बोले, झूठ बोले, इसका जगह है जहन्नम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, वो बड़ी अच्छी बात है। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर ऐसा चैलेंज बड़ी बड़ी हाके नहीं, आप गौर से सुनिए, हवाले से हवाले सुन लें। आप जो बोलोगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुनिए, तफसीर इब्ने कसीर हवाला नंबर मैं दे रहा हूँ, जिल्द नंबर। खामोश हो जाएं आप, खामोश हो जाएं, दलील सुन लें। कुरान की तफसीर सुना रहा हूँ, कुरान की तफसीर सुना रहा हूँ, सुने। फोटो दे दो इंशाअल्लाह, हवाला मैं बता दे रहा हूँ, जिल्द नंबर। अभी फोटो कहेंगे तो अभी मैं खींच के भेज सकता हूँ, मेरे हाथ में ये है। हाँ तो हाँ, बेशक बेशक। तो सुनिए, तर्जमा इनका ये होता है, बेशक अल्लाह सुनाता है जिसे चाहता है, यानी अल्लाह ताला उन लोगों को दलील सुनाने के कबूल और पैरवी करने की हिदायत देता है। और आप ए रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र वालों को नहीं सुना सकते, यानी ये ऐसे हैं जैसे कि मुर्दे अपने मौत के बाद कोई फायदा नहीं हासिल कर सकते। ये काफिरों के मुताल्लिक के बयान कर रहे हैं तफसीर इब्ने कसीर, और आप खींचतान करके मोमिनों पर, कभी नबियों पर चश्मा करने की आयत की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जितने तफासीर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे सुनने से मुराद कबूले सिमा यानी हिदायत नहीं पा सकते। वो जिसे अल्लाह ने तौफीक दे उसे तौफीक छीन ले। बस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम बल्लिगु अन्नी वलौ आयतन का काम था, पहुंचाना काम था। उन लोगों को तबलीग करते रहे, बताते रहे। इसी तरह भी इरशाद हुआ, इन्नल्लाह यस्मउ मन यशाउ व अंता बिमुस्मइन मन फिल कुबूर। लिहाजा इस आयत मुकद्दसा से समाए मौता की नफी नहीं हो रही है, बल्कि इस बात हो रही है कि तुम्हारी ताकत व कुव्वत नहीं कि तुम मुर्दों को अपना कलाम सुना दो, बल्कि ये काम हमारी कुदरत में है। तुम्हारा कलाम और सलाम सुना देते हैं। जिस तरह की हिदायत तुम्हारे कब्जे कुदरत में नहीं है, सिर्फ तुम तबलीग का फरीजा अदा किए जाओ, हिदायत का रास्ता दिखाते जाओ, लेकिन हिदायत का नूर उसके दिल में हम पैदा करेंगे। ठीक इसी तरह तुम अपना काम और सलाम और मौता तक पहुंचाते जाओ। तुम्हारा सलाम और कलाम को उन्हें सुना देना हमारा काम है। लिहाजा ये आयत मुंतकूस में समा पर साफ और निहायत वाज़ेह दलील है कि समाए मौता पर। यहाँ पर आप कह रहे हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम, मतलब हिदायत देना काम किसका है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का। सिर्फ हम लोग इनको क्या करना है? उसको दीन इस्लाम की बात सुनाना है, चाहे हिदायत ले या ना ले, इसका जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन, मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हिदायत दे सकता है और कोई नहीं। वो इनकार नहीं ना है, इनकार नहीं है, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब आप समझे नहीं,
आप आधी बात को सुनते हैं, पता नहीं बोग्ज के कान से सुन रहे हैं क्या कर रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हादी बनाया। कान खोल के मैंने सुन लिया। कान खोल के सुने ना, कान के कितने खोले हैं? आप दिमाग की कटोरी को सीधा करें ना, उल्टी आप रखे हो। मालूम है तुम किसी और को पहुंचा देना। मैं आपको पूछूंगा, बरसात में आपके बारिश हो रही थी, हाशिम अली साहब, आपको मैं पूछूंगा, बारिश हो रही थी आपके आंगन में और बड़ा गमला रख दिए, कटोरी रख दिए, भरा कि नहीं भरा? तो आप कहें नहीं भरा, तो मैं ताज्जुब करूंगा ना, इसलिए कि इल्मी बात मैं बयान कर रहा हूँ, हदीस के तफसीर कुरान की तफसीर मैं बयान कर रहा हूँ, और आप दिमाग के कटोरी को उल्टी रखे हैं, समझने की सलाहियत नहीं है आपके नजदीक। तो आपके बारिश के कसूर नहीं है, इल्म के कसूर नहीं है, कुरान के कसूर नहीं है, तफसीर के कसूर नहीं है, आपके दिमाग को सीधे करके रखे ना, बैठे ना। सुनो भाई, तुम लोगों का अकीदा है, मतलब बेरलवियों का अकीदा है कि जो कब्र में है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूसा अलैहि वसल्लम, जो भी नबी कब्र में है, मतलब दुनिया की बात, पूरा वर्ल्ड की बात सुन लेता है, डायरेक्ट सुन लेता है। लेकिन हमारा अकीदा ये नहीं है। हमारा अकीदा ये है कि जो हम लोग दरूद पढ़ रहा हूँ, ये दरूद फरिश्तों में जाकर इस पर पहुंचा देता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर पहुंचा देता है, तभी सुनता है। फरिश्तों को सुनाई देती है आपकी आवाज? नहीं। हेलो, क्यों काट दिए? क्यों काट दिए फोन? वही तो मैं कह रहा हूँ, फोन क्यों काट के भाग गए आप? अरे नहीं काट गया अपना। अच्छा, बहरहाल तो सुनिए हाशिम अली साहब, गौर से सुनिएगा, तफसीर नसफी, 1 मिनट बोलूंगा, उसके बाद आप बोलिएगा, है ना। दोनों की आवाज अगर बीच में टकराएगी तो सुनने वाले को बहुत बुरा लगेगा। आप तफसीर बैठो ना आराम से। जी तफसीर एक साइड पे जाकर चुप के बैठ जाओ। मैं चुप कब बैठ जाऊं और आप इल्मी हवाले के बगैर में बात कर रहे हो यार। तो 1 मिनट हवाला सुन लो। हाशिम अली साहब, गैर मुकल्लिद साहब, तफसीर। चुप बैठो ना यार, चुप बैठो ना। तो खामोश हो जा, मेरी बात सुन लो। पहले बात सुन ले, उसके बाद आप बोलिएगा, है ना। बाद में बोल लेना, पहले सुन लो। तफसीर नसफी, तुम्हारा बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ये तफसीर की किताब बकवास नहीं है, मैं बगैर हवाला के नहीं बात करूंगा ना। अब सुन ले, आप 1 मिनट सुनो यार, उसके बाद आप बोलोगे, मैं टाइम दूंगा आपको। तुमको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, तुम। अरे यार, हवाला पेश करो, चैलेंज वैलेंज तुम्हारे बकवास झींगे हाँकने की जरूरत नहीं है। सुनो हवाला, तफसीर नसफी, जिल्द नंबर 3, सफा नंबर 222, अल्लामा अब्दुल्ला बिन अहमद बिन महमूद नसफी बयान फरमाते हैं, इन्नका ला तुस्मिउल मौता की तफसीर करते हुए फरमाते हैं, लिमा कानू ला याऊना मा यस्मऊना वला बिही यार। सुन, बकबक करने की आदत है तुम्हारी क्या यार? तुमको अक्ल तमीज है? कुरान की आयत पढ़ रहा है, बकबक कर रहा है। काफिर लोग इसी का किया करते थे, कुफार और मुशरिकीन। काफिर से भी बदतर आदमी हो तुम। हाशिम, कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, मुसलमान का होता अगर खामोश हो जाता, कुरान पढ़ते हुए ये बकबक कर रहा है, मतलब कि काफिर से भी बदतर ये है। हाशिम अली सुनो गौर से, ला यस्माऊना वाला बिही यनफऊना शुबुहम बिल मौता वहुम अहया उनसे आउल हवास। ये लिखते हैं इसलिए कि वो कुफार जो सुनते थे वो इससे इंतफा नहीं करते, तो उनको मुर्दों से तशबीह दी गई। जैसा कि अभी ये हाशिम गली गैर मुकल्लिदीन कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ और बकबक कर रहा था, तो मतलब कि ये काफिर और मुश्रिक से भी बदतर है। हालांकि वो जिंदा थे, उनके हवास सही थे, फिर भी उनको अल्लाह तबारक व तआला मौता से तस्वीर दिया है। और वो आयत को ये गैर मुकल्लिद हाशिम अली कब्र में जो है उनको फिट कर रहा है, यानी अपने अकल से कुरान को समझ करके जहन्नम जाने की पूरी प्लानिंग कर लिया है ये लोग। हाँ बोलो, आप बोल हाशिम अली, इसका जवाब दे, इसका जवाब दे बकलोल, इसका जवाब दे। सबूत नहीं है, सुन रहे हो? कोई दलील नहीं है। मैं कुरान और हदीस का हवाला दूं? मैं
ऐसी चीखने से, अगर मोची चमार के चीखने से किसी का बैल मर जाता ना, तो चमारों का बहुत फायदा होता है। जिस तरह से तुम भौंक रहे हो, बेरेलवियों को मैं कई साल से मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अब हदीस सुनाऊं मैं? कर रहे हो ये गलत है, इसका तुम इसी तरह से अपने आप को भौंकते रहो, और दलील हम लोग देंगे, कुरान और हदीस के मुताबिक हम ईमान बनाएंगे। तुम लोग अपने मनगढ़ंत अकीदा गढ़ करके इस्लाम को बिगाड़ रहे हो। कि दुनिया और मतलब जो कुछ भी होता है वर्ल्ड में, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्टली सुन लेता है। किस दिन तुम इसकी दलील भेजोगे ना, दलील तुम दो कि नहीं सुनते हैं, दलील दो। हाशिम अली, तुम बुखार लग जाएगा, अभी मैं सवाल करूंगा, तुम जवाब नहीं दे पाओगे अपने। अभी तुम दलील मांग रहे हो, अभी तुम दलील मांग रहे हो। मैं तो तुम बक रहे हो ना। कम से कम आधा घंटा से मैं बात कर रहा हूँ। तुमको मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा ये अकीदा है, ये अकीदा सही है, तो तुम मुझे दिखाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कुरान और हदीस तो नहीं अभी पेश किया हूँ। हदीस अगर लादना शुरू कर देंगे ना हाशिम, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। तुम्हारा मुंह से जो कुछ भी बोल रहे हो ना, वो मेरे को यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम बरेली हो। अच्छा, आयत नंबर मैं बताऊं? आयत नंबर मैं बताऊं, स्क्रीन शॉट भी भेज दूं आपको। तफसीर का हवाला मैं बताऊं और स्क्रीन शॉट अभी दे दूं, है ना? अभी मैं फौरन भेज देता हूं आपको। आप तौबा करेंगे हाशिम अली? स्क्रीन शॉट भेजो। जी, अभी तौबा करेंगे, ऐलान कर देंगे। अभी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। जिस आयत नहीं, मैं आयत वही तफसीर जो मैं पढ़ा हूँ, जो मैं स्क्रीनशॉट फौरन ही भेज सकता हूँ आपको मैं। तफसीर में जी, तफसीर इब्न कासिर, तफसीर रूहुल बयान, बहुत सारे तफसीर इब्न कासिर नहीं, तफसीर बोलिए। आपको बोलने की भी तमीज नहीं है, और मुनाजरा के मैदान में दौड़ पड़े। ऐसे घामड़ और बेवकूफ अगर मुनाजरा करने लगेंगे तो अहले हदीसों के बेड़ा गर्क ऐसे ही है, और फिर बेड़ा गर्क कर दोगे तुम लोग। अच्छा, हाशिम अली बेवकूफ, हाशिम अली, उसी से पता चला तुम हाशिम अली गैर मुक़ल्लिद। सुनिए, हदीस नंबर आपको याद है? हदीस नंबर आप पढ़ सकते हैं, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1370 पढ़िए। तो मैं तुमको ये बात बता रहा हूँ हाशिम अली, हाशिम अली, आपका अकीदा खराब है यार, आपका अकीदा खराब है। बिल्कुल ऐसा अकीदा है जो कुफारू मुश्रिकीन का अकीदा था, वैसा अकीदा तुम बनाए हो। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को घटाने के वास्ते अपने आप को अहले हदस कह रहे हो, शर्म आती है। हदीस बुखारी शरीफ की खोलो, हदीस नंबर 1370, हदीस खोले। हदीस का हाफिज हूँ क्या? नहीं, मेरे पास तो सब कुछ। हदीस खोले, जिल्द नंबर 2, हदीस नंबर बता दिया मैं। वो हदीस नंबर जो 360 है ना, आप गुरु घंटाल जो वहाबियों का बनाया हुआ, वही मैं हवाला दे रहा हूँ आपको, वहीं से पढ़े आप। सहीहुल बुखारी जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 567 है ना। हदीस नंबर किताबुल मगाजी बाबू कत्ल अबू जहल में पढ़िए, हदीस नंबर 1370 पढ़िए, तो मौजूद है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र वालों को कैसे सुनाते हैं और कैसे सुनते हैं। अगर माज़अल्लाह कुफार मुशरिकीन का है, जो मुर्दा दिल थे, जिनको दिलों को मुर्दा कहा गया, कुफार मुशरिकीन को कब्र से तशबीह और मुर्दा से तशबीह दी गई, तुम उसको फिट कर रहे हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अरे भाई, मैं कुरान और हदीस से तुमको दफना दूंगा इंशाअल्लाह। हदीस में अब बुखारी शरीफ में हदीस दलील दे रहा हूँ ना। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1370 खोलें, कल शाम तक देख लेना। मैं तुमको शाम तक भेज देंगे। तुम्हारे बाप दादा का जो ऐप है ना 360 है, वो खोल लो, हदीस नंबर देख लो यार। अपना अकीदा को दुरुस्त करो, और हराम अकीदा से, इस्लाम के खिलाफ अकीदा से तौबा करके मुसलमान बनो यार। सुनो, तौबा तो तुमको करना चाहिए। तुम्हारा क्यों? हदीस और कुरान की दलील हम पकड़े, और तुम जाहिल मुतलक अपनी राय से अकीदा बना रहे हो। तौबा तुम करोगे या हम करेंगे? सुनो मेरे भाई, कोई झगड़ा नहीं। जो कुरान, मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, समझे? कुरान और हदीस के फैसला मान लो, बस ये मेरा मुतालबा है। और ऐसे गलत अकीदा जो अहले हदीस, जिसको विक्टोरियन ने बनाया, क्यों उस पर मर रहे हो? वो विक्टोरियन काम नहीं देगा तुमको, अंग्रेज काम नहीं देगा। अरे क्यों कुरान और हदीस को गले से नहीं लगाते?
क्यों कुरान और हदीस को गले क्यों नहीं लगाते? तुम लोग पैदा हुए हो, कुरान और हदीस को गले से लगाओ यार। मैं कुरान और हदीस की तरफ तुमको बुला रहा हूँ, आओ कुरान और हदीस की तरफ मिल करके पकड़े और इस्लाम के झंडे को प्रचार बुलंद करें। उससे पहले करोगे करोगे अल्हम्दुलिल्लाह। बरेलवी मसलक के अकीदा तुम्हारे अगर फतावा सनाइया पढ़े हो, फतावा सनाइया पढ़े हो, तुम्हारे अकाबिरीन घंटालों ने कहा था अंग्रेज के दौर में, सुन लो, अंग्रेज के दौर में विक्टोरियन जो जिंदा थी उनको जब नाम सेलेक्ट कर रही थी उस वक्त फतावा सनाइया लिखी गई, उसमें कहा गया 80 साल पहले अहले सुन्नत व जमात का अकीदा वही था जो इस वक्त जिसको बरेलवी मसलक कहा जाता है। ये जो समझे, हम तो पहले से ही यार नस्ल का कुत्ता जितना है ना बेरेलवी, ये बेरेलवी क्यों बात दलील से बात नहीं करते हो यार? सामीन व नाजरीन देखिए, कुरान और अहादीस की दलील मैं दूं और इनकी किताब की दलाइल मैं दूं और ये बेवकूफ जाहिल बकबक कर रहा है, कोई दलील पेश नहीं कर रहा है। आप खुद फैसला करें कि ये वहाबड़ा सही पर है जिसको विक्टोरियन ने बनाया या अहले सुन्नत व जमात हक पर है जो हक के तर्जमान मसलक के आला हज़रत करता है। जन्म तारीख है 470 हिजरी में अब्दुल कादिर सुनो, जिलानी रहीमहुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे हैं। बुखारी शरीफ जो बिदाती है, सुन लो, है जो हो गई बात है, जो बिदाती है हाँ, लोग अहले हदीस पर भोगता है। मतलब अच्छा, अहले हदीस तुम अपने चेहरा को जनाब, तुम अपने चेहरा को शीशा में देखो। अहले हदीस वो हैं जो मुहद्दिसीन के गिरोह होते थे, उनको अहले हदीस कहा गया। तुम्हारे विक्टोरियन जो सेलेक्ट किया है ना, वो नाम अहले हदीस लेबल लगाया है। शराब के बोतल में अगर गुलाब का लेबल लगा दिया जाए, पेशाब के बोतल में अगर गुलाब अर्क का लेबर स्टिकर लगा दिया जाए तो वो गुलाब का अर्क नहीं बन जाता, शराब रहेगा, पेशाब ही रहेगा। अहले हदीस विक्टोरियन ही रहेगा। बहरहाल सुने, बुखारी शरीफ हदीस सुने, सुन लो, इधर बकबक मत करो, खामोश रहोगे इसे खामोश कराएंगे। जुल्फ़िकार साहब इसे खामोश कराएं। अरे खामोश क्यों रहो? खामोश नहीं रहोगे तो मैं खामोश रहूं क्या? अजीब बात है। दलील सुनो ना, इसको सुनाओ, इसको खामोश करिए। दलील में सुना रहा हूँ बुखारी शरीफ, अल्लाह के रसूल और खुदावंदे कुद्दूस का फरमान सुनाऊंगा और ये काफिर और मुश्रिक बकबक करेगा तो आवाम कैसे सुनेगी? इसको खामोश करा। अरे भाई तुम खामोश करा इसे, अंग्रेजों से खामोश करा इसे, अंग्रेजों से, और तुम मुझे तुम जन्म लिया अंग्रेज का दलाल हो तुम लोग 100%। इसको खामोश कराइए, खामोश कराइए। हदीस और कुरान की मैं अभी लाद रहा हूँ मैं। जन्म तारीख है 470 हिजरी। बहरहाल खामोश हो, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, चुप रहो, उसी ने बताया, चुप रह मरदूद, चुप रहा, खामोश। सहीहुल बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2, जैसा कि मैं हवाला दिया सामीन किराम, ये खामोश नहीं रहेगा, ये खामोश रहेगा या नहीं? जुल्फ़िकार साहब, जुल्फ़िकार साहब, जुल्फ़िकार साहब इसे खामोश कराएं। इसको ना पता है क्या है, इसको हिजियान की बीमारी हो गई है, डॉक्टर के तरफ इसके पिछवाड़े से बड़ा सुई डालिए ना, खामोश हो जाएगा। मुश्किल कुशा है, इसने खुद बताया कि जो बिदाती है वही लोग अहले हदीस पर भोगता है। लेकिन ये हरामखोर क्या कह रहा है? ये अंग्रेज हरामखोर गालियां दे रहा है। देखिए, अंग्रेज के दौर में तुम्हारा बापों ने किताबों में लिख छोड़ा है, तुम्हारे बापों ने तुम लोगों को, हाशिम अली साहब, तुम लोगों को गैर मुक़ल्लिद और लामजहब से याद किया जा रहा था और वहाबी का नाम खिताब से दिया जा रहा था। लेकिन तुम्हारे अब्बाओं ने बड़ी बड़ी किताबों ने, तकरीबन मेरे पास 7 हवाले मौजूद है तुम्हारे फतावा सत्तारिया में और फतावा सनाइया में और फतावा उलमाए अहले हदीस में साफ तौर पर तहरीर है कि अम्मा हुजूर विक्टोरियन के जमाने में हमारे अकाबिरीन ने अपने नाम को तब्दील कराया, अपने गिरोह का नाम सेलेक्ट कराया, अहले हदीस का लेबल अहले हदीस का चढ़ गया तुम लोगों के फिरका के नाम। लेकिन चढ़ने से पेशाब की बोतल में
गुलाब का अगर लेबल लगा दिया जाए, गुलाब की स्टिकर लगा दिया जाए तो गुलाब नहीं बनता। तुम लोग वहाँ बड़ा ही वहाँ बड़ा रहोगे और तुम लोग विक्टोरियन, तुम्हारे अम्मा हुजूर है विक्टोरियन ही रहोगे, समझे, बदली नहीं होगी। बहरहाल मैं हदीस सामीईन किराम के लिए मैं हदीस पेश कर देता हूँ और आप लोग खुद फैसला कीजिएगा कि हमारे अहले सुन्नत व जमात के ईमान व अकायद हक पे हैं या इस बकलोरों की गिरोह जो चंद टके के अंग्रेज ने जिसको खरीदा था। पैदा होने वाला मत भौंको, खामोश हो, खामोश हो। तेरा मुश्किल कुशा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अलीम मुश्किल कुशा रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं और हमारे औलिया किराम मुश्किल कुशा हैं, बताऊंगा। बहरहाल मैं अपने मौजू से इस तरफ या मैं माजरत तलब करता हूँ सामीन किराम से। बुखारी शरीफ कुत्ते खामोश हो, कुरान और हदीस को देखिए, ये गैर मुकल्लिदीन मिसले शैतान होता है, इसको खामोश कराए ना, दलील सुनेंगे। मैं कुरान और हदीस जी तेरा कौम का खामोश हो जाए, तू कुछ भी बोलेगा। मैं कुरान की आयत में दलील दे रहा हूँ, सूरह फातिर की आयत से जिंदा। मैं कुरान की मैं हदीस में दे रहा था बुखारी शरीफ के, लेकिन ये सुना नहीं, इसका क्या मैं तबसरा करूँ। मैं हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने इसको खामोश कराए ना, वहाँ पे जाके वो इसको मुंह में मारिए ना, चढ़ाता है, मुंह मारिए इसको। देखो गाली बक रहा है, ये किससे बात कर रहा है? मैं इसको थोड़े खामोश करा रहे हैं। ये बेवकूफ जाहिल अनपढ़ गवार गैर मुकल्लिदीन के नाम पर इस्लाम का काला धब्बा और इस्लाम को बदनाम करने वाला कौम, पेशाब पीने वाला कौम, सुअर के मनी चाट कर पाक खाता है। ये लोग सुअर के मनी को खाएगा मर्द, ऐसा घिनौना ऊंट के मुंह में पी करके और वजू करता है।